Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 6 September 2021. I'm sure children you all are taking very good care of yourselves and following all the safety precautions not only for COVID but also for other infectious diseases right now. जैसे अभी इस समय यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि इस समय बहुत ज़्यादा डेंगू हो रखा है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है डेंगू, बहुत लोगों को हो रहा है. तो चिल्ड्रन डू टेक ऑल द प्रिकॉशंस, क्योंकि डेंगू का जो मॉस्किटो है वो मॉस्किटो बाइट से ही होता है डेंगू. एंड उसका जो मॉस्किटो है इट बाइट्स ड्यूरिंग डे टाइम ओनली. नॉर्मली हमको शाम को मच्छर काटते हैं, शाम को अंधेरा होने के बाद. बट डेंगू का जो मॉस्किटो होता है दैट बाइट्स ड्यूरिंग डे टाइम ओनली. प्लीज़ वेयर फुल स्लीव शर्ट्स, फुल पैंट पहनो, अपने हाथ को अपने पैरों को बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखो एंड स्टे इनसाइड. घर पे रहो जितना पॉसिबल हो सके, इनसाइड द सेफ कन्फाइंस ऑफ योर होम. घर के मतलब सेफ्टी में रहो, so that whenever the school reopens, as you all know we are collecting the consent forms. कंसेंट फॉर्म हम कलेक्ट कर रहे हैं. जब भी आपको स्कूल बुलाना ठीक समझा जाएगा, whenever it is found that even the children of class 1 to 5 can be called to the school, क्योंकि 1 to 5 के लिए भी स्कूल्स खुल गए हैं 1 सितंबर से. तो जब भी आप लोग को बुलाया जाएगा, कीप योर सेल्फ सेफ एंड प्रोटेक्टेड so that you all can come to school. I'm sure you all must be looking forward because I have received lot of consent forms. बहुत सारे consent form मुझे मिल रहे हैं and it shows that parents are very eager to send their children to school and you also are very much, you must be looking forward कि कब स्कूल खुले और कब हम स्कूल जाएं. Okay? So take all the necessary precautions for जो भी इस समय जनरल, जो भी इस समय वायरल फीवर भी बहुत होता है, कफ कोल्ड होता है, तो सबके लिए प्रिकॉशंस लो एंड कीप योर सेल्फ सेफ एंड प्रोटेक्टेड. ओके चिल्ड्रन, so as you all can see on the board that we have started, we are continuing with lesson number 5 which is a visit to the vegetable shop. हम lesson number 5 अभी कर रहे हैं. So in continuation with this chapter only, here I am before you with one more video from this same chapter. ठीक है? By now you all know the story of the chapter. Story is about a girl called Tina and her mother who both of them go to a vegetable shop. They bought lot of vegetables. Tina was very excited to see so many vegetables at one place because maybe she had never seen so many vegetables before. कभी शायद उसने इतनी सारी vegetables एक साथ नहीं देखी होंगी. She was very excited. Tina picked up some vegetables. Her mother picked up some vegetables. They bought lot of vegetables. They came back home. घर वापस आए, थक गए थे बहुत, but very happy and satisfied. Then Tina made chill lemonade for her mother. And that was her gesture. वो उसको अपनी मम्मी को थैंक्स बोलने का एक तरीका था. तो इन रिटर्न उसकी मम्मी ने उसको एक हग दिया, गले से लगाया और किस किया. ओके, सो दिस वाज द लेसन. वी हैव डन द comprehension exercise. जो first exercise is always based on comprehension. So in this chapter we have done multiple choice question. ठीक है, we have done first in comprehension we have done A and B and we have also done the question answers. A is multiple choice question, B was circling the odd one out. Odd मतलब जो चीज़ सबसे अलग होती है. ठीक है, and C we have done question answers also. Now today children we will be starting with grammar exercise, grammar glee. Okay, so turn to page number 48 in your English course book. Your main course book is Wordsworth English Reader. Turn to page number 48. ठीक है, we will start with grammar glee. GRAMMAR, grammar, GLEE, glee. Okay, page number 48. Okay, now children, in this lesson, जब मैंने पूरा लेसन पढ़ाया था, आपको पूरा लेसन पढ़ाया, and as you know I write each and every line on the board. मैं बोर्ड पे हर एक लाइन लिखती हूँ. ठीक है, तो बहुत सारे नेमिंग वर्ड्स के पहले, ठीक है, जस्ट बिफोर द नेमिंग वर्ड्स वहाँ पे एक और वर्ड यूज़ किया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
जैसे आई एम नॉट गोइंग टू राइट द होल सेंटेंस. Turn to page number 44. Like you can see, first line, bright, B-R-I-G-H-T, bright summer morning. Okay? Bright summer morning. Then second paragraph, the shop was laden with different types of vegetables. It was neat, clean and looked very colorful. ठीक है, जैसे neat, clean and looked very colorful, तो मैं सिर्फ colorful लिख रही हूँ. ठीक है, and these words are used for the shop. ये words जो use किए हैं, ये किसके लिए use किए हैं? Neat, clean and colorful. These words are used for Mohanlal's shop. So neat, clean and colorful shop. Okay. And then come to page number 45. Tina picked up some orange carrots. Okay. O-R-A-N-G-E. Orange. C-A-R-R-O-T-S. Orange carrots. Then huge. P-U-M-P-K-I-N, huge pumpkin. ठीक है, टीना ने क्या लिया? Some orange carrots, huge pumpkin. Then fresh cauliflower, F-R-E-S-H, fresh, C-A-U-L-I-F-L-O-W-E-R, huge cauliflower. ठीक है. Then fresh cauliflower, juicy tomatoes, J-U-I-C-Y, juicy, T-O-M-A-T-O-E-S, tomatoes. अभी और बेटा बोर्ड पे अच्छा चलो, I can write some more, juicy tomatoes. Then B-R-I-G-H-T, bright, red, B-E-E-T-R-O-O-T, bright red beetroot. ठीक है. Then leafy cabbage, big, L-E-A-F-I, leafy, C-A-B-B-A-G-E, big leafy cabbage. ठीक है. Bunches of spinach, basket full of टेस्टी ग्रीन पीस. और यहाँ पे जगह नहीं है, अच्छा शायद एक लाइन और लिख सकती हूँ मैं, टेस्टी ग्रीन पीस. ये मैं क्यों लिख रही हूँ अभी, आई जस्ट एक्सप्लेन. ठीक है, ये लिखने के बाद एक्सप्लेन करती हूँ. टेस्टी ग्रीन पीस. देन चिल्ड, C-H-I-L-L-E-D, चिल्ड, L-E-M-O-N-A-D-E, चिल लेमनेड. ठीक है. अभी मैं बता रही हूँ कि मैंने ये क्यों लिखा है बोर्ड पे. ठीक है. नाउ सी द वर्ड्स, ब्राइट समर मॉर्निंग. व्हाट काइंड ऑफ मॉर्निंग, कैसी मॉर्निंग थी? इट वॉज ब्राइट समर मॉर्निंग. ठीक है ना. ब्राइट मतलब मैंने जैसे बताया, ब्राइट मीन्स वेरी, जो बहुत चमकीला जैसा होता है. गर्मी के दिन में अभी भी आप देखोगे, सुबह हम जब सो करके उठते हैं, सुबह अराउंड 6-6:30 इट बिकम्स सो ब्राइट, बिकॉज सन तेजी से चमकता है, सूरज तेजी से चमकता है, तो सुबह 6, 6:30, 7 बजे एकदम रोशनी, एकदम ब्राइट चमकदार हो जाता है बाहर. कभी कभी तो बाहर इतनी तेज धूप हो जाती है कि मॉर्निंग में ही रोड पे चलने पे लगता है आँख पे कितनी धूप आ रही है ना. तो वन ब्राइट समर मॉर्निंग. तो ये वर्ड जो है ब्राइट इसके लिए यूज हो रहा है, समर मॉर्निंग के लिए. ओके. देन नीट, क्लीन एंड कलरफुल. ठीक है. तो ब्राइट टेल्स अस द टाइप ऑफ मॉर्निंग, कैसी मॉर्निंग है. जैसे कभी बारिश के दिन में जब क्लाउडी है तो हम कहते हैं इट्स वेरी क्लाउडी मॉर्निंग, मतलब बादल हैं. ठीक है. वी से वेरी डल मॉर्निंग. जब क्लाउड रहते हैं, बादल रहते हैं, धूप नहीं रहती, तो कैसा अजीब डल सा लगता है ना. सन की लाइट बहुत तेज़ होती है, बट जब सूरज चमकता है तो इट इज़ सो ब्राइट, मतलब अच्छा लगता है ना. एंड जब सूरज नहीं निकलता है, धूप नहीं होती, तो वी फील वेरी डल. एंड सन इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी. जैसे हमारी बॉडी के लिए
अलग अलग मिनरल्स, अलग अलग विटामिन चाहिए होते हैं। तो सन इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। हम कितनी भी चीज़ें खा लें, कितनी भी मेडिसिन खा लें, लेकिन सूरज से जो हमको हमारी बॉडी को जो विटामिन डी मिलता है उसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता। इसीलिए दिन में थोड़ी देर सन में भी रहना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो नीट, तो ब्राइट यहाँ पे हमें इट टेल्स अस द टाइप ऑफ मॉर्निंग, क्लाउडी मॉर्निंग, वेरी कोल्ड मॉर्निंग, फॉगी मॉर्निंग, डल मॉर्निंग, ब्राइट मॉर्निंग, नीट, क्लीन एंड कलरफुल। हियर द वर्ड्स नीट, क्लीन एंड कलरफुल, these three words are used for the shop. किसके लिए यूज हो रहे हैं? शॉप के लिए। How was the shop? The shop was neat, clean and colorful. साफ सुथरी और रंग बिरंगी थी। So these three words tell us about the type of the shop. ठीक है, कैसी शॉप है उसके बारे में बता रहे हैं। Then orange carrots. ऑरेंज हमें किसके बारे में बता रहे हैं? The word orange tells us about the color of carrots. कैरेट सबको मालूम है, गाजर नारंगी रंग के होते हैं, थोड़े कभी लाइट ऑरेंज होते हैं, कभी एकदम डार्क ऑरेंज होते हैं। अभी जो आप कैरेट्स देखोगे वो थोड़े से लाइट ऑरेंज होते हैं। जब जो विंटर्स में जब कैरेट मिलता है तो दैट इज एब्सोल्युटली बहुत डार्क ऑरेंज सा होता है, कभी कभी एकदम रेडिश भी होते हैं, ठीक है। तो ऑरेंज यहाँ पे हमें क्या बता रहा है? ऑरेंज टेल्स अस द कलर ऑफ द कैरेट्स, ठीक है। तो ऑरेंज ने हमें कलर बताया। ह्यूज पम्पकिन, ह्यूज क्या बता रहा है? ह्यूज टेल्स अस द साइज। जैसे मैंने बताया था कि बिग माने बड़ा, लार्ज माने बड़ा, ठीक है। बिग का मतलब भी बड़ा है, लार्ज का मतलब भी बड़ा है। ह्यूज मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी बिग, ठीक है ना। जो कोई चीज़ अगर बहुत बड़ी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? वी यूज़ द वर्ड ह्यूज, बड़ा। तो कैसा पम्पकिन? ह्यूज। तो हियर द वर्ड ह्यूज टेल्स अस द साइज ऑफ द पम्पकिन, ठीक है। ह्यूज हमें पम्पकिन का साइज बता रहा है। देन फ्रेश, फ्रेश कॉलीफ्लावर। फ्रेश, यहाँ पे फ्रेश वर्ड हमें क्या बता रहे हैं? फ्रेश टेल्स अस द नेचर ऑफ द कॉलीफ्लावर, ठीक है। सब्जियाँ या तो फ्रेश बिल्कुल ताज़ी होंगी या बासी होंगी, एक दिन पुरानी होंगी। बासी को इंग्लिश में स्टेल बोलते हैं, मतलब एक दिन जो पुरानी सब्जी है तो वी से स्टेल वेजिटेबल। जैसे कई बार होता है ना वेजिटेबल सब्जी वालों के पास, जो फ्रेश वेजिटेबल होती है वी कैन मेक आउट दैट इट इज़ एब्सोल्युटली फ्रेश, बिल्कुल ग्रीन अच्छी से दिखती है। एंड इफ द वेजिटेबल इज स्टेल तो भी हमें समझ में आ जाता है, ठीक है ना। फ्रेश कॉलीफ्लावर, फ्रेश टेल्स अस द नेचर ऑफ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर इज गोभी, तो फ्रेश वर्ड जो है वो हमें किसके बारे में बता रहे हैं? गोभी के नेचर के बारे में। कॉलीफ्लावर का मतलब फ्रेश ताजी है या पुरानी है, ओके। देन जूसी टोमेटोज। What kind of tomatoes? Juicy. Juicy मतलब something which is full of juice. Juicy mangoes, juicy tomatoes, juicy orange, very juicy lemon. मतलब किसी भी चीज़ में जो रस वाली जो चीज़ होती है उसमें juicy का मतलब it is full of juice. तो juicy tomatoes, यहाँ पे juicy word हमें क्या बता रहा है? It is telling us again the nature of कैसे tomatoes हैं? Juicy, ठीक है। Then bright red beetroot. Again ब्राइट रेड मतलब बहुत डार्क रेड। जैसे हर एक जो भी कलर्स होते हैं देयर आर डिफरेंट शेड्स, ठीक है। कलर्स के भी अलग अलग शेड होते हैं। तो ऐसा नहीं कि रेड का मतलब ये नहीं कि सारा रेड एक सही होगा, रेड के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं। तो कुछ रेड थोड़ा हो सकता है, थोड़ा सा कुछ रेड आप देखोगे थोड़ा वो डल भी दिखता है। एंड ब्राइट रेड मतलब एकदम चमकता हुआ, बहुत गाढ़ा लाल, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राइट एंड रेड, दीज टू वर्ड्स दे आर टेलिंग अस द कलर ऑफ द बीटरूट, ठीक है। Big leafy cabbage. Big, it tells us the size of the cabbage, and leafy मतलब कैसी होती है कैबेज? कैबेज देखा है ना, पत्ता गोभी जिसको हम कहते हैं। पत्ता गोभी में नाम से समझ में आता है कि उसमें इट इज लेयर ऑफ लीव्स, ठीक है। तो बिग लीफी कैबेज। देन टेस्टी ग्रीन पीस, ठीक है। बिग मतलब उसका साइज बता रहा है। टेस्टी ग्रीन पीस, टेस्टी वर्ड हमें क्या बता रहा है? इट टेल्स अस द टेस्ट ऑफ ग्रीन पीस। चिल्ड लेमनेड। व्हाट काइंड ऑफ लेमनेड? चिल्ड, एकदम ठंडा। चिल्ड है, कोल्ड है। कोल्ड मतलब ठंडा, चिल्ड मतलब बहुत ठंडा। तो कोल्ड है, चिल्ड है, हॉट है, कैसा है, ठीक है ना। तो चिल्ड लेमनेड, इट टेल्स अस द टाइप ऑफ लेमनेड। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑल दीज वर्ड्स, जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है, दे give us some additional information about the naming word, जो उनके साथ जो naming word है, ठीक है। bright summer morning, neat, clean and colorful shop,
orange carrots, huge pumpkin, fresh cauliflower, juicy tomatoes, bright red beetroot, big leafy cabbage, tasty green peas, chill lemonade. So all these words, they tell us something more about the naming words with which they are used. ठीक है, ये जो वर्ड्स है, ये हमें जिन नेमिंग वर्ड्स के साथ हमने इन वर्ड्स को यूज़ किया है उसके बारे में हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. या तो उसका कलर बता रहे हैं, या उसका साइज बता रहे हैं, या उसका टेस्ट बता रहे हैं, या उसका नेचर बता रहे हैं. ठीक है, सो द वर्ड्स विच गिव अस सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेमिंग वर्ड्स, दे आर नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. Turn to page number 48 in your English course book. Grammar Glee. ठीक है ना. The words bright, colorful, huge, etc. tell us more about naming words. For example, bright morning, colorful vegetables, huge pumpkin. ठीक है. These words are known as describing words. इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम? These words are known as describing words. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ये जितने वर्ड्स हैं, जितने वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है, they give us some additional information about the naming words. इनको हम कहते हैं describing words and in English grammar they are known as adjectives. ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में इनको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स बोलते हैं. ये वर्ड्स हमने लेसन नंबर 3 में भी पढ़ा था. लिटिल रेड हेन, ठीक है ना, लेजी डॉग, स्लीपी कैट, नॉइजी डक, हार्ड वर्किंग हैन, राइप ग्रेन्स. ठीक है ना. तो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, वी यूज दोज वर्ड्स बिफोर नेमिंग वर्ड्स. ऑफ कोर्स नॉट ऑलवेज. ठीक है. माई स्कूल इज़ वेरी बिग, मेरा स्कूल बहुत बड़ा है. तो यहाँ पे अगर सेंटेंस में इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ विच वर्ड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो यहाँ पे बिग होगा. ठीक है. नॉर्मली वी यूज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बिफोर द नेमिंग वर्ड्स. सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किसे हम कहते हैं? दीज वर्ड्स गिव अस सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेमिंग वर्ड. अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है. इट कैन बी द साइज, उसका शेप, कलर. ठीक है ना. कोई खाने की चीज़ है तो उसका टेस्ट है, उसका टाइप है. कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई पर्सन है, कोई एनिमल है तो उसका नेचर कैसा है. ठीक है. बिग ट्री, ह्यूज ट्री, ह्यूज एलिफेंट, टेस्टी डिश. ठीक है. तो जो भी वर्ड्स हमें साइज बता सकते हैं. राउंड क्लॉक, कैसी, व्हाट इज द शेप ऑफ द क्लॉक? इट इज राउंड. सो राउंड क्लॉक, राउंड इज द describing word which tells us the shape of the clock. So जो describing words होते हैं, they give us some additional information about the naming word and they can tell us the shape, they can tell us the size, color. Red balloon, colorful umbrella, green umbrella, pink flower. तो शेप बता सकते हैं, साइज बता सकते हैं, कलर बता सकते हैं, टेस्ट बता सकते हैं, उसका नेचर बता सकते हैं. So these words are known as describing words. Okay. So I hope children the definition of describing word is clear to all of you. We have still not done describing words in our grammar. Grammar में अभी हमने describing words नहीं किया है, but of course we have done this previously also. हर एक लेसन में आपने किया. जैसे इसके पहले जो हमने लिटिल फ्रॉग वाली पोएम पढ़ी, लिटिल फ्रॉग, तो लिटिल अगेन इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. इट टेल्स अस द साइज ऑफ द फ्रॉग. ठीक है. तो हर एक लेसन में कहीं ना कहीं हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड जरूर पढ़ा होगा. कलरफुल बॉल, ठीक है ना, कलरफुल बॉल. तो कलरफुल क्या है? कलरफुल इज डिस्क्राइबिंग. लेसन नंबर जैसे 4 में पढ़ा, स्कूल बिल्डिंग इज वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल. What kind of school building? Big and beautiful. ठीक है ना. So the words which give us some additional information about the naming words or the nouns, they are known as describing words. ठीक है. Now let us do the exercise. I hope this is clear. Definition सबको समझ में आ गई. अभी मैं ये erase कर रही हूँ. Now children, in this exercise some words are given. Okay. Choose a suitable describing word from the box for the words given below. Grammar Glee में A is CHOOSE. Choose
suitable, suitable, describing, describing. Choose a suitable describing word from the box. Choose a suitable describing word from the box for the WORDS, words, GIVEN, given, BELOW, गिवन बिलो, मतलब जो बॉक्स में जो कुछ वर्ड्स दिए हैं उनमें से आपको सूटेबल वर्ड चूज करके जो नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें उनके साथ यूज करना है, ठीक है। नाउ द वर्ड्स आर, मैं बॉक्स तो नहीं बना रही हूँ, द वर्ड्स आर JUICY, जूसी, RED, रेड, SMART, स्मार्ट, TALL, tall, STRONG, strong, then PRETTY, pretty, YELLOW, yellow, HUGE, huge, TASTY, tasty, and FAST, fast. Now children, I hope you know the meaning of all the words. Juicy, juicy मैंने बताया, something which is full of juice. Red is the color. Smart is related to the look of someone, very smart person, smart girl, smart boy, smart man, smart woman. मतलब smart का मतलब है कि the way we dress up, the way we conduct ourselves, उसको कहते हैं smart, ठीक है। Tall, tall मतलब लंबा, tall is related to the height. Strong, strong मतलब very powerful. Pretty, pretty, that is very beautiful. Pretty flower, pretty dress, pretty girl, pretty woman, pretty child. Pretty means something which is very beautiful. Yellow, yellow is the color. Huge, huge भी सबको मालूम है, size से related है. Tasty, tasty is related to taste. And fast, fast is related to speed. ठीक है, this car runs very fast, fast car, fast train. ये गतिमान express is a very fast train. Now we have to use these words. अभी पहले मैं words लिख लूँ. TOMATOES, tomatoes. Dash GIRL, girl. I hope you can see. Then dash TREE, tree. Okay. Dash ELEPHANT, elephant. Then dash GRAPES, grapes. Then dash apple, APPLE, apple. Then dash man, banana, BANANA, banana. And boy, one is left, ठीक है, बस एक छूट गया है, तो ये हम लिख लेंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। और we can write it here, नहीं चलो अच्छे इसको कर लें। Now first is dash tomatoes, तो tomatoes के साथ आप क्या फिलअप करोगे, अभी हमने लेसन में पढ़ा what kind of tomatoes, लेसन में हमने भी पढ़ा tomatoes कैसे थे, tomatoes were juicy, ठीक है। लेसन में पढ़ा ना कि टीना picked up, टीना ने लिया था ना some juicy tomatoes, orange carrot, a huge pumpkin, a fresh cauliflower, some juicy tomatoes. तो tomatoes के साथ हम क्या word use करेंगे, we will use the word juicy, ठीक है। अगर if you have to write any word कि कोई भी tomatoes के साथ कोई भी आप
एडजेक्टिव यूज करो, कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो यू कैन ऑल्सो से रेड टोमेटोज, ठीक है। यू कैन ऑल्सो से ग्रीन टोमेटोज, टोमेटो जब कच्चे होते हैं तो ग्रीन होते हैं ना, राइट टोमेटोज, पके हुए टोमेटोज। अच्छा, अभी आउट ऑफ दीज वर्ड्स जूसी इज देयर, रेड भी है, रेड भी बोल सकते हैं, रेड टोमेटोज, वी कैन से टेस्टी टोमेटोज, ठीक है ना। बट देन देयर आर अदर फ्रूट्स ऑल्सो, तो हो सकता है अभी ग्रेप है, एप्पल है, बनाना है, तो सिंस लेसन में हमने जूसी पढ़ा इसीलिए मैं यहाँ पे जूसी लिख रही हूँ, ओके। देन डैश गर्ल, आउट ऑफ दीज सेंटेंसेस, आउट ऑफ दीज वर्ड्स, अभी जिस वर्ड के साथ इफ वी कैन यूज टू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, उसको अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। कोई भी अगर ऐसा वर्ड है कि जिसके साथ हम 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, तो अभी उसको हम छोड़ दे रहे हैं, ओके। नाउ डैश गर्ल, गर्ल के साथ हम वी कैन से स्मार्ट गर्ल, ठीक है, स्मार्ट गर्ल बोल सकते हैं। वी कैन से टॉल गर्ल, टॉल हम बोल सकते हैं। देन वी कैन से प्रिटी गर्ल, प्रिटी भी बोल सकते हैं। सो दैट मीन्स विद गर्ल वी कैन यूज 3 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जितने यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें से हम 3 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम गर्ल को छोड़ देते हैं। लेट अस सी द अदर वर्ड्स ऑल्सो, कि इनमें से विच ऑल द 3 वर्ड्स कैन बी यूज विद गर्ल, बट 3 वर्ड्स हैं तो बाकी 2 वर्ड्स और दूसरे वर्ड्स के साथ ही होंगे, दूसरे नेमिंग वर्ड्स के साथ यूज होंगे, तो लेट अस लीव दिस, ठीक है। अभी डैश ट्री, ट्री के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन से स्मार्ट ट्री तो नहीं, टॉल ट्री हम बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्री भी हम बोल सकते हैं। वी कैन से ह्यूज ट्री ऑल्सो, ठीक है ना, ह्यूज ट्री भी बोल सकते हैं, तो ट्री को भी अभी छोड़ देते हैं। एलिफेंट, अभी एलिफेंट के साथ हम टॉल वर्ड नहीं यूज करते। नॉर्मली एलिफेंट के साथ हम एलिफेंट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वी नॉर्मली डिस्क्राइब एन एलिफेंट विथ इट्स साइज। एलिफेंट को हम नॉर्मली उसके साइज से डिस्क्राइब करते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ह्यूज एलिफेंट, HUGE, ह्यूज वर्ड इज ऑल्सो यूज, ठीक है। देन ग्रेप्स, अभी ग्रेप्स के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन नॉट से रेड, स्मार्ट, टॉल, स्ट्रॉन्ग, प्रिटी, येलो, ह्यूज, टेस्टी। कैसे ग्रेप्स है, इसमें से आउट ऑफ दीज वर्ड्स ओनली दिस वर्ड टेस्टी, ओनली द वर्ड टेस्टी विल गो विथ ग्रेप्स, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे, TASTY, टेस्टी ग्रेप्स, ठीक है। अच्छा, एप्पल, अभी एप्पल के साथ हम वी कैन से रेड एप्पल, वी कैन से बस हम बस रेड एप्पल बोल सकते हैं, जूसी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी फिल, तो रेड एप्पल, एप्पल के साथ हम रेड वर्ड यूज करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ एप्पल, एप्पल का कलर रेड होता है, तो एप्पल को भी हम नॉर्मली या तो टेस्टी एप्पल बोलते हैं, रेड एप्पल बोलते हैं, जूसी एप्पल बोलते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी यूज द वर्ड जूसी, वी हैव ऑलरेडी यूज द वर्ड टेस्टी। तो एप्पल के साथ हम जो भी वर्ड यूज कर सकते हैं, जो भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, वी आर लेफ्ट विथ ओनली रेड, ठीक है, रेड एप्पल। देन डैश मैन, अभी मैन के साथ हम टॉल मैन भी बोल सकते हैं, वी कैन से स्मार्ट मैन ऑल्सो, ठीक है ना। तो अभी इसको भी हम छोड़ देते हैं। बनाना, बनाना के साथ हम इसमें स्मार्ट बनाना नहीं कह सकते, टॉल, प्रिटी, येलो, फास्ट। तो आउट ऑफ दीज वर्ड्स वी कैन यूज ओनली वन वर्ड, दैट इज येलो, ठीक है। तो बनाना के साथ हम क्या यूज करते हैं, येलो बनाना। नाउ वी आर लेफ्ट विथ, एक तो ट्री हमारे पास बचा, तो ट्री के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अभी और कोई हमें डाउट किस में था, वी कैन से टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, वी कैन से टॉल ट्री, वी कैन से स्ट्रॉन्ग ट्री। ह्यूज हमने ऑलरेडी एलिफेंट के लिए यूज कर लिया, तो नॉर्मली मैन के लिए हम स्ट्रॉन्ग मैन नहीं बोलेंगे, हमको कैसे पता कि वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, लेकिन हम उसकी हाइट देख करके वी कैन से कि वेदर द मैन इज टॉल और शॉर्ट, तो मैन के लिए हम टॉल यूज करेंगे, टॉल मैन। सो वी आर लेफ्ट विथ स्ट्रॉन्ग। तो ट्री के लिए हम क्या यूज करेंगे, STRONG, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अभी वी आर लेफ्ट विथ गर्ल एंड बॉय, ठीक है, एंड द वर्ड्स आर स्मार्ट एंड प्रिटी। अभी बॉयज के लिए हम प्रिटी वर्ड नहीं यूज करते, वी डू नॉट से वेरी प्रिटी बॉय, वी से स्मार्ट बॉय, वी से हैंडसम मैन, ठीक है, वेरी गुड लुकिंग, बट वी डू नॉट से प्रिटी। प्रिटी मीन्स प्यारा, प्रिटी इज यूज फॉर गर्ल्स, ठीक है। तो गर्ल के लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं प्रिटी गर्ल, ठीक है, प्रिटी, PRETTY, प्रिटी गर्ल।
एंड बॉय के लिए क्या यूज करेंगे? SMART, स्मार्ट बॉय. नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन, दैट इज फास्ट. एंड फास्ट हम किसके साथ यूज करेंगे? विथ कार. ठीक है, फास्ट कार. चिल्ड्रन, इफ देयर इज एनी डाउट, इसको मैं आई विल अगेन रिपीट दिस एक्सरसाइज टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज आई फील कि थोड़ा कंजस्टेड हो गया है. यू मे हैव सम प्रॉब्लम, हो सकता है समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो इसको मैं इस एक्सरसाइज को आई विल अगेन रिपीट इट टुमारो अलॉन्ग विथ नेक्स्ट एक्सरसाइज. ठीक है, तो कल इसको हम फिर से करेंगे, बट आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट. आपको बुक में बस वर्ड लिखने हैं, तो आप क्लास में, जैसे मैंने बोला है कि बुक का काम, बुक की एक्सरसाइज आप यू कैन डू इट अलॉन्ग विथ मी इन द क्लास इटसेल्फ. ओके, सो आई विल स्टॉप हियर ओनली चिल्ड्रन. दैट इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू. मैं फिर से एक बार साइड हो जा रही हूँ कि इफ यू विश टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, अदरवाइज आई विल डू दिस एक्सरसाइज अगेन टुमारो. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन. That is all for the day. Thank you and have a good day.